ہیں یہ اڑتے ہوئے چڑیا کیا بولتی ہیں۔ امام محمد رضا کو جب چیلنج کیا گیا وہ خاکساری کرتے رہے، تواضع کرتے رہے، یہ اصرار پہ اصرار کرتے رہے یہ تمہارے نبی کی حدیث نہیں ہے، کیوں تم خام خواہ کہتے ہو، یہ تمہارے پیغمبر کی حدیث ہے۔ جذبے میں آ گئے امام محمد رضا، سیدی اعلیٰ حضرت تو بریلی کی ٹوٹی چٹائی میں ہیں مگر ولایت کے تاجدار ہیں، ولایت کے سمندر میں موجیں اٹھتی ہیں۔ امام محمد رضا نے کہا ظالموں یہ میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے، اس کی صداقت میں تم احمد رضا کو پرکھنا چاہتے ہو، بولو کیا چاہتے ہو۔ کہا احمد رضا تم قاعدے کی بات کر رہے ہو، ذرا سر اٹھاؤ، یہ فضا میں دو چڑیا اڑ کے جا رہی ہیں، یہ فضا میں چھوٹی چھوٹی چڑیا اڑ کے جا رہی ہیں، بتاؤ یہ آپس میں کیا بول رہی ہیں، یہ آپس میں کیا کہہ رہی ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کو کیا کہہ رہی ہے۔ امام محمد رضا نے کہا جو آگے آگے چڑیا جاتی ہے وہ پچھلی چڑیا کو کہتی ہے جلدی جلدی آج شام ہونے والی ہے، زور سے بولو پیارے سبحان اللہ۔ جو آگے چڑیا جاتی ہے پچھلی چڑیا کو کہتی ہے جلدی جلدی آ شام ہونے والی ہے۔ جو پچھلی چڑیا ہے وہ یہ کہتی ہے یار دھیرے دھیرے اڑ، میرے بائیں پاؤں میں کانٹا چبھا ہوا ہے۔ پہلا بات یہ کہتی ہے پہلی چڑیا یہ کہتی ہے جلدی جلدی آ شام ہونے والی ہے، پچھلی چڑیا کہتی ہے دھیرے دھیرے اڑ، میرے بائیں پاؤں کے میں کانٹا چبھا ہوا ہے۔ کتنا سننا تھا، یہ انگریز سپاہی کے ہاتھ میں بندوق تھی، انہوں نے پچھلی چڑیا پر پیچھے جو چڑیا اڑ کے جا رہی تھی انہوں نے گولی چلا دی، گولی ہوا کو چیرتی ہوئی آگے بڑھی ہے، پچھلی اڑنے والے چڑیا کے بدن میں پیوست ہوئی ہے، گولی کا لگنا تھا، وہ چڑیا زمین پہ گرتی ہے، جیسے زمین پہ گری یہ دونوں انگریز سپاہی اس چڑیا کے پاس آئے، پاؤں پیر انہوں نے دیکھا وہی بات کہی جو اعلیٰ حضرت نے کہی تھی، پائیں چڑیا کے پیر میں پائیں میں کانٹا چبھا ہوا تھا۔ حقانیت کا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء کرام۔ انگریز سپاہیوں نے کہا جب بریلی کے احمد رضا کا یہ حال ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا، اور کوئی غیب کیا تم سے یہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود کعبہ کے بدر تو جا، تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ میں کہنا چاہوں گا فضا میں چڑیا جو اڑتی ہے اس کی بولی بھی ہمارے کان میں نہیں آتی ہے، جس اعلیٰ حضرت کا تم عرس منانے جا رہے ہو وہ بولی بھی سمجھتے ہیں، وہ زبان بھی سمجھتے ہیں، وہ بھاشا بھی سمجھتے ہیں، بدن کے کسی سے میں کانٹا چبھا ہوا ہے، بریلی کا احمد رضا دیکھتا ہے، مجھے کہہ لینے دو جب بریلی میں وہ رہ کے فضا میں اڑنے والے چڑیا کے کانٹے کو دیکھ سکتا ہے، دھام نگر میں مجاہد ملت کے غلاموں کی عقیدت کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے پیارے وہ دونوں انگریز کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں دنیا کے انسان کا احسان ہمارے جسم پہ ہے، ہماری جان پہ، احمد رضا کا احسان ہمارے عقیدے پہ ہے، ہمارے ایمان پہ۔ زندہ باد، لاجواب لاجواب۔ وہابیوں کے خلاف ہم بیدار ہیں، دیوبندیوں کے خلاف ہم تیار ہیں، تبلیغیوں کے خلاف ہم برسرے پیکار ہیں، مگر ایک باطل فرقہ ہے شیعہ، اس شیعہ کے خلاف بھی ہمیں سینہ سفر ہونا پڑے گا۔ ان شیعوں کے خلاف ہمیں سر پہ کفن باندھنا ہوگا، ان شیعوں کے خلاف ہمیں تحریک چلانی ہوگی۔ کچھ دن پہلے تم نے وسیم رضوی نام کے ایک شیعہ کی بات سنی تھی، اس نے ہائی کورٹ میں رپورٹ داخل کر دی، قرآن میں 27 آیتیں ایسی ہیں جسے نکال دینا چاہیے، زبانی طور پہ بولا نہیں، ہائی کورٹ میں اس نے پٹیشن داخل کر دیا۔ چند دن کے بعد لوگوں نے دیکھ لیا جو قرآن کی آیتوں کو نکالنے کی ناپاک کوشش کرتا تھا وہ اسلام نام کا نام بھی نہ رہ سکا،
बुत परस्त बन गया। मेरे बुजुर्गों, पता क्या चला? ये शिया कल भी इमाम हुसैन के दुश्मन थे, आज भी दुश्मन हैं। कल भी वो नबी के दुश्मन थे, आज भी वो नबी के दुश्मन हैं। सिद्दीक़ अकबर को जो फिरका गाली देता है उसे शिया कहा जाता है। उमर फारूक की शान में जो तौहीन करता है उसे शिया कहा जाता है। क्यों बेदारी की जरूरत है? अभी हमारे बाले सर में हमारे भोले भाले मुसलमान शियों के चंगुल में आ रहे हैं। वो ईदे कदीरे खुम बना रहे हैं, वो सिर्फ ताज़िया नहीं कर रहे हैं, बल्कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला जो सहाबी रसूल हैं, हुजूर के बिरादर निस्बती हैं, कातिबे वही इलाही हैं, उनकी शान में ये गुस्ताखी कर रहे हैं। इसलिए ऐ धामनगर के मुसलमानों, अपने अकीदे को बचाओ, अपने ईमान को बचाओ। वहाबियों के खिलाफ भी, देवबंदियों के खिलाफ भी, तबलीगियों के खिलाफ भी और ये शियों के खिलाफ होने की जरूरत है। हम अपने उलमा से, हम अपने शायरों से कहना चाहेंगे, कलाम के नाम पे जहाँ ये जिक्र आ जाता है, एक नंबर है अली का नंबर, एक नंबर है अली का नंबर, एक नंबर नहीं, अबू बकर का नंबर एक नंबर है, उमर का नंबर 2 नंबर है, उस्मान का नंबर 3 नंबर है, अली का नंबर 4 नंबर है। हजरत उस्मान गनी का भी कदम की धूल आंखों का सुरमा है, अली मुर्तजा के नालैन की धूल आंखों का सुरमा है, उमर फारूक के कदमों का गुबार चेहरे का खाजा है, सिद्दीक़ अकबर के नालैन का गुबार हमारे आंखों का सुरमा है। इसलिए बेदार होने की जरूरत है। फिर आओ, फिर वही बात जिसका एहसान हमारे औरों का एहसान हमारे जिस्म पे है, हमारी जान पे। इमाम मोहम्मद रजा का एहसान हमारे अकीदे पे, हमारे ईमान पे। जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब, बहुत अच्छा। शियों का रब था, शियों का मुकाबला था। मुजाहिदे मिल्लत नहीं कर रहे थे, आला हजरत नहीं कर रहे थे, मुजाहिदे मिल्लत मुनाज़रा करने वाले थे। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत अलैहि रहमा को एक किताब याद थी कि उसमें शियों का रद लिखा हुआ है और मुजाहिदे मिल्लत मुनाज़रा करने वाले थे शियों से। अब उसके लिए किताब के मुताले की जरूरत पेश आई। बदमज़हबों के खिलाफ किस लाइब्रेरी में किताब मिलेगी? धामनगर के हबीबुर रहमान ने कहा, बदमज़हबों के खिलाफ हथियार दुनिया में कहीं मिले कि न मिले, आला हजरत के कुतुब खाने में मिल जाएगा। धामनगर से सफर किया मुजाहिदे मिल्लत और बरेली पहुंचे। ट्रेन से उतरे, रिक्शे में बैठे, सौदा करान आ गए। आला हजरत का वैसा बरसों पहले हो चुका था। ये दौर मुफ्ती आजम हिंद का दौर था, ये दौर हुजूर ताजुश शरिया का दौर था। आप मुजाहिदे मिल्लत अलैहि रहमा जूं बरेली शरीफ पहुंचे, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद से मिले, हुजूर अपनी बातें उन्होंने पेश की। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के लिए हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने आला हजरत के कुतुब खाने की अलमारियों की चाबियां रख दी। आप कुतुब खाना खंगाल डालिए, आप अपने मतलब की किताब निकाल लीजिए। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत हैं, ताजुश शरिया वगैरह घर के बच्चों के साथ देर तक आला हजरत के कुतुब खाने की अलमारियों को खंगालते रहे। मगर इत्तेफाक ऐसा, जिस किताब को हासिल करने के लिए धामनगर से मुजाहिदे मिल्लत चले थे, आला हजरत के कुतुब खाने में वो किताब मिल न सकी। वापस आए, दिल टूटा हुआ था कि किताब न मिली। आला हजरत के यहाँ से न मिली तो फिर कहाँ से मिलेगी? इमाम मोहम्मद रजा के कारखाने से ये अगर असलहा हथियार न मिल सका तो फिर कहाँ मिलेगा? टूटे हुए दिल के साथ, शिकस्ता खातिरी के साथ इमाम मोहम्मद रजा की बारगाह से हुजूर मुजाहिदे मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान वापस आए। बरेली स्टेशन पहुंचे, अभी ट्रेन आने में देर थी। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत गमगीन थे। रेलवे स्टेशन में परेशानी के आलम में आप टहल रहे थे, चहलकदमी कर रहे थे। इतने में ये बड़े मियाँ आ गए, बड़ी उम्र के एक बुजुर्ग आ गए। एजेड आदमी आए, मुजाहिदे मिल्लत से सलाम किया। मुजाहिदे मिल्लत ने जवाब दिया, फरमाया, मौलाना आपके ट्रेन में आने में अभी लेट है। सोचिए, उनको क्या क्या पता चला कि इनके ट्रेन में अभी देर है। हजरत ने फरमाया, हाँ। तो देखो ऐसा है, स्टेशन के बाहर एक गली है और गली में ये फकीर की हवेली है। अरे बोलिए,
चल के देखिए पुराने जमाने की कुछ किताबें रखी हुई हैं, आपके मतलब की अगर किताब हो तो ले लीजिए। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमा ने ये महसूस किया अभी ट्रेन आने में देर है, इस बुजुर्ग ये बूढ़े आदमी का मकान अभी स्टेशन के बाहर ही है, चलते हैं। आगे आके वो बुजुर्ग चले, पीछे पीछे मुजाहिद मिल्लत चले, स्टेशन से बाहर आए, मोड़ पे एक गली आई, थोड़ी दूर चले, गली में वो हवेली आई, बूढ़े मियाँ बड़े मियाँ घर के अंदर गए, उन्होंने एक बस्ता मुजाहिद मिल्लत के सामने किताबों का खोल दिया। ऐसे किताबों का बस्ता खुला, सबसे पहले किताब तलाश करने के लिए मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान ने जो किताब हाथ में लिया वही किताब थी जिसे लेने के लिए मुजाहिद मिल्लत धामनगर से गए हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत सरकार हुजूर मुजाहिद मिल्लत। मतलूबा किताब मिल गई, मुजाहिद मिल्लत बड़े खुश हो गए, उसे उलट पुलट कर जब देखने लगे खुशी पाल आए। खुशी इस बात की थी उस किताब में जो अरबी में किताब थी उसका हाशिया आला हजरत ने अपने कलम से लिखा हुआ था, कलम में हाशिया मिल गया। मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमा किताब को बोसा लेने लगे, सीने से लगाया, फिर स्टेशन वापस आ गए। स्टेशन पहुंचने के बाद पता किया ट्रेन आने में और भी देर है। मुजाहिद मिल्लत सोचने लगे ट्रेन आने में देर है, मैं बड़े मियाँ के यहाँ से जल्दी जल्दी में चला आया, उनके यहाँ पुराने जमाने की बहुत सी किताबें हैं, मुफीद किताबें कोई और भी होंगी, हमें उसे हासिल कर लेना चाहिए। फिर हुजूर मुजाहिद मिल्लत बरेली के स्टेशन से बाहर गए, फिर बाहर जाने के बाद उस बड़े मियाँ के घर जाना चाहे, स्टेशन से बाहर निकले, मुजाहिद मिल्लत सरगर्दा है, न वो गली मिली न वो बुजुर्ग मिले। बाहर आए तो न वो गली मौजूद थी न वो बड़े मियाँ मौजूद थे। पूछने वाले ने मुजाहिद मिल्लत से पूछा मुजाहिद मिल्लत, फिर वो बुजुर्ग कौन थे? मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया वो मेरे आला हजरत का करम था, वो मेरे आला हजरत का एहसान था। मैं अर्ज ये करना चाहूंगा बदमज़हबों के मुकाबला करना ये ईमान बचाना है, वहाबियों से मुकाबला करना ईमान बचाना है, शियों से मुकाबला करना ये ईमान बचाना है। ये वो काम है जब मुजाहिद मिल्लत करते हैं, उनकी मदद के लिए आला हजरत अपने कब्र अनवर से आ जाते हैं, अपने रोज़ाए पाक से आ जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं दूसरों का एहसान हमारे जिस्मो जान पे है, आला हजरत का एहसान हमारे अकीदा व ईमान पे है। मेरे बुजुर्गों, मैं अपनी गुफ्तगू अब खत्म कर दूंगा। बड़े कीमती शोरा हजरा यहाँ तशरीफ फरमा है, हजरत मौलाना जुनैद जमाली साहब का भी आप बयान समाप्त करेंगे। ये मुजाहिद सामने मुजाहिद मिल्लत की आबाई हवेली है और पीछे हुजूर मुजाहिद मिल्लत की मुकद्दस झोपड़ी है जिसमें हजारों रातें गुजरी हैं रो रो के मुजाहिद मिल्लत की, बेकरारी में मुजाहिद मिल्लत की। इन गुजरगाहों में सैकड़ों करामतें हैं जो सादिर है मुजाहिद मिल्लत से। मैं इन ज़र्रों का तज़किरा करने के लिए नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ मुजाहिद मिल्लत के बाबा के उस समय आने वालों, आज से ये तय करो हम अपना ईमान बचाएंगे, वहाबियों से बचाएंगे, जो बंदियों से दूर रहेंगे, कादियानियों से दूर रहेंगे, शियों से दूर रहेंगे, जो नबी का गद्दार है हम उससे दूर रहेंगे, जो नबी का वफादार है हम उस तरीके पे चलेंगे। इसी को मसलके आला हजरत कहा जाता है। यही पैगाम कल इसी हवेली से यही पैगाम कल मुजाहिद मिल्लत दिया करते थे, आज यही पैगाम हुजूर हबीबे मिल्लत दे रहे हैं, नवासाए मुजाहिद मिल्लत दे रहा है, फैज़ाने मुजाहिद मिल्लत दे रहे हैं, करामते मुजाहिद मिल्लत दे रहे हैं। इनके ताबिस्ता होने वाला मुजाहिद मिल्लत के कदमों में आ जाता है, उनसे करीब होने वाला फैज़ाने मुजाहिद मिल्लत लेके घर वापस होता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं उर्स मन्नानी जिंदाबाद, उर्स तैयब जिंदाबाद और फैज़ाने मुजाहिद मिल्लत पाइंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद।